मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। प्यार से पुकारा तूने, जीवन नया। सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज होगा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Pieces broken and scattered, mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken.
the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing ways, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see your love in your mind, laying yourself down, raising up your Lord, can't you Hi everyone, praise the Lord. I want to greet you in the name of Jesus. प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको यीशु मसीह के नाम से प्रणाम करता हूँ। I just want to pray with you. मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। Father, we just come before you this morning and we want to thank you for your love, for your grace, and for sending Jesus to us. I just want to give you glory and I ask you to reveal yourself and your Son to us more clearly, vividly, so that we know Him as who He is and we can follow Him faithfully. We want to be followers of the truth, you, and be a part of the kingdom. We don't want to misunderstand Jesus. We don't want to miss the idea of who Jesus is. We don't want to walk in the wrong direction when we are supposed to follow the way Jesus walked. Help us. Give us grace, His mercy, and understanding. I just pray this in your name. Amen? Alright. I promise you today that this study is going to help you understand Jesus more clearly than ever before for you. मैं आपको ये वादा देता हूँ कि आज जिस तरीके का हम आज जो पढ़ने वाले हैं उससे आप यीशु मसीह को और अच्छी तरीके से समझेंगे। We have been studying about Jesus and His nature
and who he was, how he lived, how he walked, where he came from, how was his youth and childhood age. We talked about all those things so far. और अब तक हमने जो है यीशु मसीह कहाँ पे जन्मे, किस उनका बचपना कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, इस सब के बारे में हमने पहले पढ़ा था. And today we're going to study about Jesus being the King of Kings, the Lord of Lords. और आज हम पढ़ने वाले हैं कि यीशु मसीह राजाओं के राजा है और प्रभुओं के प्रभु है. I agree with you because that's exactly how we worship Jesus and that's exactly how we call him. और मैं आपके साथ इसे अग्री करता हूँ और यीशु मसीह को हम इसी नाम से पुकारते हैं. You call Jesus King of Kings, हम यीशु मसीह को राजाओं का राजा करके, Lord of Lords, Majesty. प्रभुओं का प्रभु करके हम उन्हें पुकारते हैं. True, he is. हाँ, जरूर सच में वो. But what kind of a king was he? लेकिन किस तरीके के राजा थे? What kind of a Lord was he? किस तरीके के प्रभु वो थे? That's very important. वो बहुत ही महत्वपूर्ण. Most of us think that Jesus is the King of Kings, comparing him with the earthly standards of the kings that we see today. बहुत से लोग जो है यीशु मसीह जो राजाओं के राजा है, उनकी तुलना जो इस पृथ्वी के जो राजा है उनके साथ किया जाता है. So we see the standard of the earthly kings and we say, okay, if the earthly king is like this glory, this great, this powerful, this mighty, then the King of Kings should be even more powerful, even more mighty, even more glorious. वो ऐसे सोचते हैं कि अगर पृथ्वी का राजा जो है वो इतना शक्तिशाली है और इतना सामर्थ्यशाली है, उसका नामों का जय जयकार इतना होता है, तो वो सोचते हैं कि जो हमारे यीशु मसीह जो राजाओं के राजा है वो उससे भी ज्यादा होना चाहिए. He deserves all the glory and worship. जरूर वो सारे महिमा के वो लायक है. So oftentimes we think we being the king's children have to dress like a king's child or act like a king's child and behave like a king's child, and we try to act like the earthly kings and their children's way of dressing and behavior. बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम राजा के बच्चे हैं तो हम भी राजकुमार या राजकुमारी जैसे हम पहनावा पहनते हैं, वैसे हम उठते बैठते हैं, जैसे पृथ्वी के राजा या पृथ्वी के राजकुमार या राजकुमारी जैसे कपड़े पहनते हैं, हम भी उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो है वो पृथ्वी के अनुसार जो है उनका चाल चलन है. We are under pressure to act like the king's children. और हम हमेशा एक प्रेशर में आते हैं कि हमें एक राजा के बच्चे जैसा हमें बर्ताव करना है. You want to live like a king's child? क्या आपको एक राजा के बच्चे जैसा आपको बर्ताव करना है, रहना है? I want to ask you. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. Pay attention and see who is your king. तो आप ध्यान से देखिए कि आपका राजा कौन है. Make sure you're acting like your king and not like the earthly king. ये ध्यान दो कि आप जो है एक राजा के बच्चे जैसा बर्ताव करो, ना कि पृथ्वी के राजा जैसा बर्ताव. This king that I'm talking about is the king of heavens. ये राजा जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो राजा है स्वर्ग का राजा. He is the king of kings. वो राजाओं का राजा है. He is the king of all kings on this earth too. और वो राजा इस पृथ्वी के भी वो राजा है. And he is the Lord of Lords. और वो प्रभु के प्रभु है. Now let's get into how he as a king lived. और हम अभी देखेंगे कि वो एक राजा होने के नाते उन्होंने कैसे अपना जीवन को जिया. First we're going to see how Jesus as a king was on this earth. पहले हम देखेंगे कि यीशु मसीह जो राजा थे वो पृथ्वी में उन्होंने कैसे जिया. And please pay attention to this. तो प्लीज आप ध्यान से सुनिए. Matthew chapter 21 verse 5. और मत्ती का जो 21वां वचन में 21वां अध्याय में 5वां वचन. So here in this portion we see Jesus is coming into Jerusalem and people are singing Hosanna, Hosanna. और हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह जो है ये यरूशलेम में आते हैं और लोग होसाना होसाना करके चलते हैं. And then we can read in verse 5 where Matthew is recording what Zechariah said. Okay? He says like this, verse 4 onwards. All this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, Tell the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, lowly and sitting on a donkey, a colt, the foal of a donkey.
और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भविष्यवाणी की गई थी, जो जकरिया ने भविष्यवाणी की गई थी, वो यहाँ पे लिखा गया है। अगर आप वचन 4 से अगर आप पढ़ेंगे, उसमें ऐसा लिखा है, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरी हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरना लादू के बच्चे पर। How is your king? आपके राजा कैसे हैं? Here the Bible says Jesus, the king, is coming on a donkey, was humble. और यहाँ पे हम देखते हैं जो यीशु मसीह जो राजा है वो एक गधे पर बैठकर आए हैं, जो बहुत ही नम्रता में वो आए। He was so humble. यीशु मसीह इतने नम्र थे। The earthly kings, if you see, they have this big pomp, and when they come, there are thousands of people around them, securities, big lights, big red carpets, great flashing cameras. That's exactly how they appear. अगर आप पृथ्वी के राजा को देखो तो वो जो है जिस तरीके से वो राजा आता है, उसको इतनी सारी इज्जत दी जाती है। जब वो आते हैं तो वहाँ पे कारपेट बिछाया जाता है, उसके बॉडीगार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी होते हैं, इतने सारा उनको प्रोटेक्शन मिलता है, इतना सब कुछ होता है। The other day I was in the airport and I saw suddenly there was a lot of crowd that was just coming around the gate, a particular gate in the airport. एक बार मैं एयरपोर्ट में था और मैंने देखा कि एयरपोर्ट में अचानक से बहुत सी भीड़ जम गई। And they are all, a lot of cameras snapping, people are running in this crowd. और मैंने देखा बहुत सारे कैमरा लगे हुए थे, कैमरा से फोटो निकाल रहे थे और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। I was able to see what was happening there. और फिर मैंने देखा कि वहाँ पे क्या हो रहा था। There I saw a film actor just walking. और वहाँ पे मैंने देखा एक फिल्म का एक्टर है, वो वहाँ से चल के आ रहा है। He's also a politician. वो एक पॉलिटिशियन भी है। And as he's coming, before him, in front of him, there are at least 20-30 bodyguards. और मैंने देखा उसके आने से पहले जो उसके आगे जो थे 10 से 20 बॉडीगार्ड थे। And they're all walking. Somebody is just walking with guns. Somebody is walking with, big bodies, and they're just trying to keep the crowd away. And then comes the entry of this guy. और हम देखते हैं, मैंने देखा कि ये जो बॉडीगार्ड है अपने हाथों में गन लेके यहाँ वहाँ वो लोग उसकी रक्षा कर रहे थे, और बॉडीगार्ड के आने के बाद ये जो एक्टर है उसके बाद आया। And then he comes, and then they go to the car. The car is separately kept, and this big bodyguard line that comes in, and this guy slowly walks in between the bodyguards, and then get in the car. Somebody opens the door and makes him sit inside and close the door, and then they secure the car. This is exactly how we treat. और मैंने देखा कि वो जो एक्टर था वो बीच में चल रहा था, उसके आजू बाजू में बॉडीगार्ड थे। उसके बाद उसको कार की तरफ लेके जाया गया, और फिर बॉडीगार्ड ने उसके लिए कार का जो दरवाजा है वो खोला, उसके अंदर वो बैठा। उसके बाद बॉडीगार्ड उसका वहाँ पे भी वो रक्षा कर रहे। This is how the kings and the children of the kings in the earthly standard is treated. और यही हम देखते हैं कि जो राजा या राजा के जो भी बच्चे हैं पृथ्वी के अनुसार उनका ऐसा ध्यान रखा जाता है। And people who are important are treated like this. और जो भी व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके साथ ऐसे बर्ताव किया जाता है। But here if you see Jesus, अगर आप यहाँ पे देखेंगे यीशु मसीह in the Bible, बाइबल में देखेंगे, actually Bible helps you if you want to understand Jesus. एक्चुअली देखा जाए तो बाइबल जो है वो आपकी मदद करेगा कि यीशु मसीह को किस तरीके से आप। Because people have this great understanding about Jesus that doesn't come from the Bible. बहुत से लोग हैं यीशु मसीह के बारे में एक सोच रखते हैं जो बाइबल से नहीं आता। They say, "Do you know who I am?" वो बोलते हैं कि तुझे मालूम है मैं कौन हूँ? I am a child of the King. वो बोलते हैं कि मैं एक राजा का बेटा। I am the servant of God. मैं जो हूँ मैं परमेश्वर का दास हूँ। There's a lot of pride in that. और उसमें भी बहुत सारा घमंड आ जाता है। There's no humility in that. और उसमें कोई भी नम्रता नहीं रहता। I'm just saying this because we all get a right understanding of Jesus. मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि यीशु मसीह कौन थे, उनके बारे में हमें समझ आए। If you don't understand who was your king, how is your king, then you will have a wrong practice and follow him in a wrong way. अगर आपको ये नहीं मालूम होगा कि आपका राजा कौन है और कैसे है, तो आप शायद गलत तरीके से जो है आपके जीवन में चीजों को अपनाएं। And you may represent him also in a wrong way. और उससे ये होता है कि आप यीशु मसीह को भी गलत तरीके से दर्शा सकते हैं। So let's see. तो हम इसलिए देखेंगे Jesus was humble. यीशु मसीह नम्र थे। He was not like the kings and queens of the earth. वो एक राजा की
की तरह या एक रानी जो इस पृथ्वी में जैसे थे वैसे वो नहीं थे। Yes, he is the king of all kings. हाँ जरूर वो राजाओं के राजा है। So you should see the King Jesus and compare and say, oh, you earthly kings, look at the standard of Jesus. तो आपको ये देख के बोलना चाहिए कि हे पृथ्वियों के राजा हो, तुम देखो कि हमारे यीशु मसीह जो राजा है वो कैसे है, उनकी तरह बर्ताव करो। Because he is the King of kings. क्योंकि वो ही राजाओं के राजा है। But we should not look at Jesus and think, oh, the earthly kings are like this, so my Jesus will also be like this. लेकिन आपको ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है कि पृथ्वी के राजा ऐसे है तो हमारे यीशु मसीह जो राजा है वो भी ऐसे ही होना चाहिए। You get the point? आपको समझ में आ That's exactly what happened with the Jews when they saw Jesus. और यही हुआ यहूदियों के साथ जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा। Because they were expecting a big king coming in, fighting against the hatred of the people of that time and then establish his kingdom for the Jews. और हमने यही देखा कि यहूदी लोग जो है वो यही सोच रहे थे कि राजा आएंगे और वो हेरोड के साथ जो है वो लड़ेंगे और ये सब वो सोच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। If you see the Pharisees, they are more politicians and they're associated with politicians. अगर आप फरीसी को देखेंगे तो वो ज्यादातर जो पॉलिटिक्स है उसमें ज्यादा वो लोग जुड़े हुए थे। They have the king's securities work for them. और जो राजाओं की जो सिक्योरिटी थे वो उनके लिए काम कर रहे And you put that today, you also will see a lot of pastors and leaders act like politicians. और आज भी हम देखते हैं कि बहुत से जो पास्टर्स है या चर्च के लीडर है वो भी पॉलिटिशियन जैसे ही बर्ताव करते हैं। A lot of Christians, when they come to the church, they expect that there's a big crowd around them. और जब भी कोई क्रिस्ती चर्च में आता है तो उनको यही चाहिए कि हाँ मेरे आजू बाजू में बहुत सारा भीड़ हो। That's a wrong idea of following Jesus. वो एक गलत तरीके का एटीट्यूड है जिसके पीछे हमें नहीं चलना चाहिए। So what kind of a king was Jesus? तो यीशु मसीह किस तरीके के राजा है? Turn with me to Mark chapter 10 verse 45. अभी आप मेरे साथ जो है मरकुस का जो 10वां अध्याय में 45 में आता है। Mark 10:45. मरकुस का 10वां अध्याय में 45वां वचन। In this you will see Jesus is telling his disciples, hey, whoever desires to be the first, let him be the slave of all. यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को चुनौती के लिए अपना प्राण। Let me read it. I read 44. I'm going to read 45. But even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. तो हमने ये वापस मैं पढ़ूंगा क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को चुनौती के लिए अपना प्राण दें। You see, Jesus didn't come to be served as a king. यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि सब लोग उनकी सेवा करें, नहीं। Jesus came to serve everyone. यीशु मसीह आए ताकि वो दूसरों की सेवा कर सके। So your king and my king, the King of Kings, is a servant तो king. आपका राजा और मेरा राजा जो इस दुनिया में आया है वो एक सेवक बन के आया है। He is there to serve everybody. वो यहाँ पे आए ताकि वो सबकी सेवकाई कर सके। He doesn't sit like that and say, everybody serve me. वो एक जगह पे बैठकर ऐसा नहीं कहा कि आ जाओ मेरी सेवा करो। Hey, come do this. No. हे आजा इधर और मेरी सेवा कर। He says, let me come and serve you. लेकिन यीशु मसीह ने कहा मुझे आके सेवा करनी। Turn with me to John chapter 14, verse 3. मेरे साथ जो है यूहन्ना का 14वां अध्याय में 3रा वचन में आता है। John chapter 14, verse 3. यूहन्ना का 14वां अध्याय 3रा वचन। In this we know Jesus is saying, I'm the way, the truth and life. और यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही रास्ता हूँ और मैं ही सच्चाई हूँ। And if you see here, Jesus is telling, I go to prepare a place for you. और वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक जगह बना रहा हूँ। Verse 3. 3रा वचन। And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो, जहाँ मैं जाता हूँ वह तुम वहाँ के मार्ग जानते हो। You know, Jesus is saying here, और यहाँ I am going to prepare a place for you. और यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार। He didn't say, enough is enough. I'm going to go now. I'm going to have a better place now. उन्होंने ऐसा नहीं बोला चलो बस हो गया मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया, अब मैं वापस अपने अच्छे जगह पे जाता हूँ। See, there have been times in my life where I thought,
I'm done. I can't live on this earth anymore. I must just go be with Jesus. कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि बहुत बार मैं ऐसे सोचता हूँ कि हो गया, मेरा काम खत्म हो गया, मुझे अभी जाना है यहाँ से। Where will I go? कब मैं यहाँ से जाऊँ? I just want to go from here. मुझे बस इस पृथ्वी से जाना है। I just want to be with Jesus. मुझे सिर्फ यीशु मसीह के साथ रहना है। See, that feeling is a self-centered feeling. और वो जो फीलिंग जो आपको आता है, वो आप स्वार्थी बन जाते हो, इसलिए ऐसा आता है। Here, look at Jesus. यहाँ पे यीशु मसीह को He देखो। didn't say, I'm done with you guys. Enough is enough. I'm going to go and prepare a place for myself and enjoy it. यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि अरे मैं थक गया हूँ तुमसे, चलो मेरा टाइम खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ और मैं मेरे जगह पे जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए भी जगह तैयार करूँगा। So he says, I go and prepare a place for you. और वो बोल रहे हैं कि मैं जाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूंगा। Okay, this is how Jesus said in the world, right? यही यीशु मसीह ने कहा इस पृथ्वी में। Okay. Now turn with me to Hebrews chapter 13, verse 8. अभी आप मेरे साथ जो है इब्रानियों का 13वां अध्याय में 8वां वचन में। Hebrews chapter 13, verse 8. इब्रानियों का 13वां अध्याय में 8वां वचन। Pay attention. आप ध्यान से सुनिए। Here we see Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. और यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह कल और आज और युगायुग एक सा है। Yesterday, कल 2000 years ago, 2000 साल पहले, 4000 years ago, 4000 साल पहले, 10,000 years ago also. 10,000 साल पहले He was the same वो वैसे ही थे like he is today, जो आज अभी है वो, and he will be in the future. और भविष्य में भी वैसे ही रहेंगे। So how Jesus treated people, तो यीशु मसीह ने किस तरीके से लोगों के साथ बर्ताव किया, how humble he was, कितने नम्रता में वो थे, how he served everybody, किस तरीके से उन्होंने सबकी सेवकाई की, it's the same he is today also. और आज भी वो वैसे ही है, And he will be also the same when we go to heaven. और भविष्य में भी वो वैसे ही रहेंगे जब हम उनके साथ स्वर्ग में जाएं। That is what it means when the Bible says Jesus is the same yesterday, today and forever. इसका मतलब यही बाइबल में कहा गया है कि यीशु मसीह कल और आज और युगायुग एक सा है। What did Jesus teach his disciples when he was there on earth? यीशु मसीह ने अपने शिष्य को क्या सिखाया जब वे पृथ्वी में थे, As a human being. एक मनुष्य होने के नाते। Matthew chapter 20 verse 25. अभी आप मेरे साथ जो है मत्ती का 20वां अध्याय में 25वां वचन में है। Matthew 20 verse 25. मत्ती का 20वां अध्याय में 25वां वचन। Here you will see Jesus telling his disciples, he called them to himself and said, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and those who are rich exercise authority over them. और 25वां वचन में ऐसा लिखा है, यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। Verse 26 he says, yet it shall not be so among you. लेकिन 26वां वचन में यीशु मसीह ने ऐसा कहा है, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। You see, Jesus as a king did not show and show off authority. यीशु मसीह एक राजा होने के नाते उन्होंने कभी भी किसी पर अधिकार नहीं जताया। He didn't act like, do you know who I am? उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला तुझे मालूम है मैं कौन हूँ, You better learn to treat me right. तू सही तरीके से मेरे साथ बर्ताव कर। No, he didn't say that. उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। He was humble. वो नम्रता He में, also taught his disciples to be humble. उन्होंने अपने शिष्यों को भी यही सिखाया कि तुम नम्रता में रहो। See, if you are a person who is proving authority, showing off authority, expecting everybody to be submissive to you, then I want to tell you that is the idea of the Gentiles, not the King of Heaven's idea. अगर आप ऐसा सोचते हो कि मुझे अधिकार जताना है, मुझे सब लोगों ने मेरे बातों को सुनना है, जो मैं कहता हूँ वही वो करना है, तो यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा है कि ऐसे जो है वो अन्य जाति के हाकिम जो है वो ऐसा काम करते हैं। Not the Lord of Lords. लेकिन प्रभुओं का प्रभु ऐसा नहीं करता। Not the King of Kings. राजाओं का राजा ऐसा नहीं करता। Not the Majesty in heaven. और ना ही कोई परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर ऐसा नहीं करता। Jesus taught his disciples the right thing, didn't he? यीशु मसीह ने अपने चेले को सही सिखाया। You and I calling ourselves to be disciples of Jesus. आप और हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। Now tell me, do we act like we have great authority? लेकिन आप मुझे बताइए क्या हम ऐसा
क्या हम Should we act as if we have great authority? क्या हमें ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि हाँ हमारे पास बहुत सारा अधिकार है? No. नहीं। Why? क्यों? Verse 26. 26वां वचन। But whoever desires to become great among you, let him be your servant. यहाँ पे 26वें वचन में ये लिखा है, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। Verse 27. And whoever desires to be the first among you, let him be your slave. और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। See, people try to impress others that they are somebody great, somebody talented, somebody powerful. हमेशा लोग जो है दूसरों को यही जताने की कोशिश करते हैं कि देखो वो कितने सामर्थ्यशाली है, उनमें कितना सारा पावर है, कितने शक्तिशाली है, उनमें कितना सारा टैलेंट है। That's how they want to show to people. और यही वो लोगों को दिखाना चाहते They want to make a good impression. वो हमेशा अपने बारे में एक अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते They हैं। want to be the first among everybody. और That वे is the case. हमेशा यही वो सोचते हैं कि मैं सबसे पहले रहूं। The Bible says that they should be a slave of everybody if they want to be the first. और यहाँ पे बाइबल में कहा है कि अगर तुम्हें पहला आना है तो सबसे पहले तुम सबका दास बनो, सबका सेवक बनो। Why? क्यों? Verse 28 has the answer. 28 में इसका जवाब है। Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his own life as a ransom for many. जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को चुनौती के लिए अपना प्राण दें। Not for self-service. उनके खुद के सेवक के लिए नहीं। Not to raise a lot of servants for himself. उन्होंने ऐसा नहीं किया कि बहुत सारे सेवकों को उन्होंने खड़ा नहीं किया उनका सेवा करने। Not to keep people under him or उन्होंने her. कभी भी किसी के नीचे किसी को भी अपने नीचे काम नहीं करवाया। He treated them as friends. उन्होंने सबको अपना दोस्त माना। He served them. उन्होंने हमेशा उनकी सेवा की। He washed their feet. यीशु मसीह ने दूसरों के उनके चेलों के पैरों को धोया। He sacrificed himself. उन्होंने अपने आप का बलिदान दिया। You see, Jesus said, I am the Son of Man. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। He could have said, I am the Son of God. यीशु मसीह ने कहा कि बोल मैं सकता था। यीशु मसीह ने बोल सकता था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और यीशु मसीह ने बोला, मैं मनुष्य का पुत्र हूँ, because he was humble. क्योंकि वो नम्र में थे। I wanted to be identified with you. और वो हमेशा उनकी तुलना मनुष्य के साथ करते थे। He wanted to be identified with you and me. The King of Kings wanted to be identified with you and me. राजाओं के राजा जो है वो उनकी तुलना हमारे साथ उन्होंने किया ताकि वो और हम एक समान बन सकें। उनका पहचान हमारे जैसा किया। He never acted like I am the Son of God. उन्होंने कभी भी ऐसा एक्टिंग नहीं किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। Hey sister, I am the Son of God. हे बहन, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। No, he didn't do that. उन्होंने ऐसा नहीं किया। He didn't say touch. उन्होंने ऐसा भी नहीं किया कि ऐसा यहाँ से टच बोला वहाँ पे लोग गिर गए। People have got the wrong understanding of Jesus. बहुत से लोगों ने यीशु मसीह के बारे में जो है सही समझ नहीं रखा है। So they represent Jesus in a wrong way. इसीलिए वो यीशु मसीह को भी सही तरीके से नहीं दर्शाते। Do you understand what I'm saying? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? We are supposed to take Jesus' example and follow. हमें यीशु मसीह का उदाहरण को लेकर उसके पीछे चलना है। We should not take man's example and think, okay, if this man can do this, how will my Jesus do? Not based on human standards. हमें ये नहीं देखना है कि अरे ये जो आदमी है अगर ये एक राजा है तो इसके अनुसार हमें चलना चाहिए। और यीशु मसीह जो खुद राजाओं के राजा है उनके अनुसार नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। कभी कभी हम ऐसा सोच लेते हैं, देखो ये दुनिया का राजा ऐसा है तो परमेश्वर कैसे रहेगा? सच है, उनका महिमा बड़ा है, मगर इनका जैसा इनका सीमा लेके हम उनको तुलना नहीं करना चाहिए। इनको दुनिया का राजा, दुनिया का अधिकारी, दुनिया का प्रभु को यीशु मसीह को लेके तुलना करना चाहिए। समझ में आ रहा है?
You see, this is the problem. This is the problem. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। See, Jesus was always others-centered. यीशु मसीह जो है हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। He said, I'm going to go and prepare a place for you. उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार He करूंगा। didn't say, I'm going to create a better place and a better house and a good place for my security and then I'll think about it. Listen. उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि अभी मैं जाऊंगा और मैं मेरे लिए अच्छा जगह वहाँ पे बना के रखूंगा और मेरे लिए जो अच्छा आरामदायक हो वो मेरे लिए मैं बनाऊंगा। Let me go and take some rest first. अभी मुझे जाके थोड़ा आराम करना है। No. ऐसा नहीं He सोचा। said, I'm going to go and prepare a place and come back and take you and go to the place where I am. उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, मैं वापस आऊंगा, तुम्हें लेकर जाऊंगा और जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मैं तुम्हें रखूंगा। He only thought about us. उन्होंने सिर्फ हमारे बारे में सोचा। He thought about others. उन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। He doesn't think about himself. उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा। That's my king. और वो मेरे लिए फायदेमंद है। My king. मेरा राजा। That's my king. वो मेरा राजा है। That's the King of Kings. और वही है राजाओं के राजा। If you are a child of that king, अगर आप ऐसे राजा के बच्चे हो, how should you treat others? तो आपको दूसरों के साथ कैसे बर्ताव Think करना? about others. You should think about others. आपको दूसरों के बारे में सोचना You should चाहिए। keep others important. दूसरों को महत्वपूर्ण स्थान देना। You shouldn't say, I'm not comfortable, I don't think I can do this. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता। No, yeah, too much. I can't serve so many people. ऐसा आप नहीं बोल सकते कि अरे नहीं ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मैं सबका सेवक नहीं बन सकता। Search your heart. आपके दिलों की आप खोज करें। If you got a wrong idea of Jesus, अगर आप यीशु मसीह के बारे में एक गलत सोच अभी तक बनाकर रखे हो, and if you have got the wrong understanding of the King of Kings, और अगर आपने राजाओं के राजा के बारे में जो है एक सही समझ अगर आपने नहीं रखा, then you're gonna be living in a wrong way. तो आप सही तरीके से नहीं रहेंगे। Remember, Jesus said, I am the way. ये याद रखो कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं रास्ता हूँ। मैं हूँ रास्ता. And you have to go Jesus' way. और आपको यीशु मसीह के रास्ते में जाना चाहिए। We can't go in the worldly way and say, if the world does this, I will do more for Jesus. हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये मुझे दुनिया के रास्ते पे चलना है, जैसे वो लोग कर रहे हैं वैसे मैं भी करूँगा। Please get your mind clear off from this confusion. आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है, उसको ये सारे कंफ्यूजन से बाहर निकालिए। Let's turn to Hebrews again and go to chapter 7 and verse 25. अभी हम वापस से जो है इब्रानियों का 7वां अध्याय में 25वां वचन हम पढ़ेंगे। See, you may say, brother, you know, Jesus was on earth, he came as a servant, so he was humble. तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि यीशु मसीह पृथ्वी में आए तो वो नम्रता में थे। In this world he served everybody, but in heaven he's the king, man. He's sitting on a throne. आप ऐसे बोल सकते हो कि हाँ पृथ्वी में तो वो एक सेवक बन के आए, वो सबका सेवकाई उन्होंने किया, लेकिन स्वर्ग में तो वो राजा है, राजा की तरह वो जी रहे हैं। Okay, so if that is the case, turn with me to Hebrews chapter 7 verse 25. अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप मेरे साथ इब्रानियों का 7वां अध्याय में 25वां वचन। See, Jesus is the king. यीशु मसीह राजा है। Jesus is also the priest. यीशु मसीह एक याजक भी है, Holy. पवित्र याजक। Now what he does, you see. और वो यहाँ पे क्या करते हैं ये हम देखेंगे। Therefore he is also able to save to the uttermost those who come to God through him, since he always lives to make intercession for them. और यहाँ पे लिखा गया है कि इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। Every day, every moment is continuing to see God's face, the Father, and cry out for you and me, interceding for you and me. हर रोज वो स्वर्ग में वहाँ पे खड़े हैं आपके लिए और मेरे लिए। वो परमेश्वर के पास जाके वो रो रो कर कहते हैं कि इन्हें माफ कर दो, और वो हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं आपके लिए और मेरे लिए। He's pleading. That's what it says. और यहाँ पे ये कहा गया है कि वो विनती कर रहे हैं परमेश्वर से। Your case, आपका केस, my case. मेरे केस में What did we do? हम क्या करते हैं? We did sin. हमने पाप किया, And he's interceding for you and me. और वो आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर के पास जाकर विनती We sinned against Jesus. हमने यीशु मसीह के खिलाफ पाप किया। We sinned against God the Father. हमने
परमेश्वर पिता के खिलाफ पाप किया, still Jesus intercedes for you and me. लेकिन फिर भी वहां पे स्वर्ग में यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए विनती कर रहे हैं। If somebody does something against us, अगर कोई हमारे खिलाफ कुछ करता है, you say, God, teach them a lesson. ये परमेश्वर उसे सबक सिखा, You want to teach them a lesson. और हम उनको सबक सिखाने की कोशिश करते हैं। But here, look at Jesus. लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह को देखें, Even in heaven, स्वर्ग में भी He's still serving you and me. वो वहां पे भी आपकी और मेरी सेवकाई कर रहे हैं। Fine. ठीक है, Let's go to the marriage supper of the Lamb. और अभी हम जो है एक जो है शादी का जो दिवस है, मेमना का शादी के बारे में हम देखेंगे। और मेमने की शादी के बारे में हम देखेंगे। Luke chapter 12, लूका का 12वां अध्याय verse 37. Verse 37. और उसमें है 47 वचन। Okay, Luke chapter 12, verse 37. In this you see, now let's see the marriage supper of the Lamb. और अभी हम देखेंगे मेमने का शादी के दावत के बारे में। You and I believe Jesus is the Lamb of God. आप और हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के मेमने हैं। And we all believe the marriage feast is going to be one of the biggest and the greatest one in heaven. और हम ये सब कुछ ये विश्वास करते हैं कि जो मेमने का जो शादी होने वाला है, उसका दावत जो है वो बहुत बड़ा होने वाला है स्वर्ग में। How will it be? वो कैसे होने वाला है? And if Jesus is sitting there on the table, where will he sit? और यीशु मसीह अगर वहां पे बैठे हैं तो आप सोचिए कि वो कैसे होंगे, Which place will he sit? किस जगह पे वो बैठेंगे। That's what we're going to read. और वही हम पढ़ने वाले हैं। Verse 37. और 47 में हम देखेंगे। In verse 37 you will see, blessed are those servants whom the master, when he comes, will find watching. Assuredly, I say to you, that he will gird himself and have them sit down to eat, and will come and serve them. और यहाँ पे लिखा है, धन्य है वह दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। Woo! Jesus is going to serve even in heaven. स्वर्ग में भी यीशु मसीह सेवा करेंगे। And he will make us sit and he will serve us food, eat. और वो हमको बिठाएंगे और वो हमको खाना परोसेंगे। And he will gird himself and come like a servant again. वो वापस से अपना जो कपड़ा है अपने कमर में बांधेंगे और वहाँ पे आके भी हमारी सेवा करेंगे। Like a waiter is waiting for us to see, what would you like? Can I give you some more? Can I give you this? Hey, can you get this? जैसे अगर हम होटल में जाते हैं तो वेटर वहाँ पे खड़ा होता है और वो हमको पूछता है खाना खाते वक्त, आपको ये चाहिए कि आपको वो चाहिए कि मैं आपके लिए और कुछ ला कर दूं? That's the attitude Jesus has to brothers and sisters. वही यहाँ पे हम यीशु मसीह का हम स्वभाव को देखते हैं। Now, how much do we serve people? अभी हम कितने लोगों की सेवा करते हैं? How much are we interested when people ask us to say something? Would we even say that? क्या हम किसी को कुछ बोलते भी हैं? अगर किसी को मदद की भी जरूरत है तो क्या हम उनके पास जाके बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद करनी है? If somebody says to you, please go and tell them this, or please say this, please do this, will you be happy to do it? अगर कोई आके आपको बोलता है कि प्लीज ये करो वो करो, कुछ काम आपको देता है, तो क्या आपको खुशी लगता है वो काम करने के लिए? Do you have a heart to serve everyone? क्या आपका दिल है कि आपका सबकी सेवा करना है? If you want to be a servant of God, how do you imagine yourself serving God? अगर आपको परमेश्वर का सेवक बनना है तो आप किस तरीके से उनकी सेवा, लोगों की सेवा करेंगे? How do you imagine yourself serving Jesus? और आप कैसे यीशु मसीह के साथ सेवा करेंगे? आपका मन में यीशु मसीह का सेवा आप कैसे करेंगे बोल के सोच के रखा है? एक स्टेज में रुक के, माइक पकड़ के, बहुत अच्छा ड्रेस पहन के, या खुद का शादी में जाके सबका सर्विस करने जगह पे यीशु मसीह है। He's not surrounding himself with servants, telling everyone, serve me, serve me. वहां पे भी वो ऐसे नहीं बोल रहे कि अपने सेवक को आजू बाजू में खड़ा करके बोल दिया कि तुम आके मेरी सेवा करो। Put here. No, here, not there, here. That's not how Jesus teaches. And Jesus is serving everyone. और यीशु मसीह सबकी सेवा कर रहे हैं। He's serving the servants. वो जो सेवक
सेवक है उनकी भी वो सेवा कर रहे हैं। So then how humble, how low he is keeping himself. तो कितने नम्रता और उन्होंने अपना स्थान को कितना नीचे रखा है। Many of us are self-centered. बहुत से लोग हम स्वार्थी लोग हैं। We act as Christians and we think we have this power from heaven, we have this special gift from heaven, and we act like we're somebody very important, and we like to be treated that way only. और हमको ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे अंदर पूरा सामर्थ्यशाली है, हमारे अंदर वो ताकत है, तो हम यही सोचते हैं, अधिकार जताने की कोशिश करते हैं। We only serve ourselves. हम खुद की सेवा करते And we want everybody to serve us. और हम यही चाहते हैं कि सब लोग आके हमारी सेवा We will think, okay, they serve us. Oh, thank you. But deep inside, oh, thank you, God. You help people serve me. और जब कोई आके आपका सेवा भी करता है तो आप सामने बोल देते हैं धन्यवाद करके, लेकिन मन ही मन आप में घमंड होता है कि अरे देखो ये आके मेरी सेवा कर रहा है क्योंकि मैं परमेश्वर का सेवक। We expect others to serve us. हम हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग आकर हमारी सेवकाई करें। There's nobody to serve me. हम ये सोचते कि अरे कोई नहीं है मेरा मदद करने के लिए, सेवा करने There's के लिए, nobody to care for me. कोई भी नहीं है जो मेरा ख्याल रख सकता है। Even after knowing Jesus. यीशु मसीह को जानने के बाद भी ऐसा करते हैं। And here it says Jesus will wait on us. और यहाँ पे ये कहा गया है कि यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए रुके। Do you want to be served by others, or are you willing to serve others? क्या आप दूसरों की सेवकाई करना चाहते हो कि आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई आकर आपकी सेवकाई करे? Jesus is the servant example. यीशु मसीह जो है एक सेवक के बहुत ही अच्छे उदाहरण है। Jesus is the king as a servant. यीशु मसीह राजा है और उसी के साथ साथ उन्होंने सेवक बहुत अच्छे सेवक भी बने। This contradicts the earthly kings and people and lords of this world. और अगर आप इसकी तुलना अगर पृथ्वी के राजा या पृथ्वी के राजाओं के हिसाब से अगर आपने तुलना किया तो ये बहुत ही अलग है। Jesus identified himself with the least of all. यीशु मसीह ने अपने आप को सबसे कम अपने आप को रखा And he served the least. और उन्होंने सबसे कम जो लोग हैं उनकी भी उन्होंने सेवकाई की। Who do you consider your family? आप किसको अपना परिवार मानते हैं? Do you want to be part of, let's say, Billy Graham's family, or do you want to be part of some guy who's sitting under a bridge, his family? Would you consider him as a family? क्या आप किसको अपना परिवार मानते हो? बिली ग्राहम का जो परिवार है उसका हिस्सा बनना चाहते हो, या तो फिर एक आदमी जो सड़क पर बैठा है ब्रिज के नीचे उसका परिवार का आप हिस्सा बनना चाहते हो? We'll read about it. We'll study about it next week. उसके बारे में हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे। But what kind of king do you serve? लेकिन किस तरीके के राजा का हम सेवकाई कर रहे हैं? A simple, humble king, एक सिंपल नम्रता भरे राजा के, or the rich and powerful and elite dispensed king? या तो फिर एक अमीर राजा जो हमेशा अपने आप को सब लोगों से दूर रखता है, उनकी सेवकाई कर रहे हैं? Are you serving the king, Jesus, who is humble and simple and willing to serve? Or are you serving the king who needs everybody to be served and who is just sitting in one place and expecting everybody to fall at his feet? क्या आप ऐसे राजा की सेवकाई कर रहे हो जैसे यीशु मसीह है जो नम्रता से भरे हुए हैं, या तो फिर आप ऐसी राजा की सेवकाई कर रहे हो जो हमेशा अपने आप को एक ऊपरी स्थान पर रखा है और आपको उसकी सेवकाई करनी है? Think about it. इसके बारे में आप सोचें। Who is your king? आपका राजा कौन है? What kind of king is Jesus? और किस तरीके का राजा है यीशु मसीह? Let's pray. हम प्रार्थना करें। Father, I just pray and ask you to help us follow Jesus truly. परमेश्वर हमारी मदद कर कि हम यीशु मसीह के पीछे सच्चाई तरीके से हम चलें। Lord, we don't want to prove to others how wrong they are and how deserving we are for a better treatment. हमें किसी को प्रूव नहीं करना है कि वो कितने गलत हैं और उनके साथ कैसे बर्ताव हमें करना है। We want to serve others with no conditions, just the way you serve us. परमेश्वर हमें दूसरों की सेवकाई करना है बिना किसी शर्त के, जैसे तूने दूसरों की सेवकाई की। Lord, we don't want to be distracted by the earthly models we have as kings and queens. इस पृथ्वी
पृथ्वी के जो राजा है उसके अनुसार हमें नहीं चलना है। We want to follow Jesus' example, who's a servant example. हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है जो बहुत ही अच्छे एक उदाहरण है हमारे लिए। एक सेवक को कैसे होना चाहिए। Help us to be true servants. हमारी मदद करके हम एक अच्छे और सच्चे सेवक बन सकें। Lord, I pray for all my brothers and sisters who are seeing this and listening to this message, to have correct understanding of Jesus from His Word. और परमेश्वर पिता जो कोई भी ये मैसेज को सुन रहा है, मेरे भाइयों बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो एक सही तरीके का समझ यीशु मसीह के बारे में रखें। Let their lives change. उनका जीवन बदल जाए। Let their characters change. उनका चरित्र बदल जाए। Let their behavior change. उनका व्यवहार बदल जाए। Let their mind change. उनका मन बदल जाए। Lord, let their service change. और उनका जो सेवकाई का जो तरीका है वो बदल जाए। Help us, Lord. हमारी मदद कर प्रभु। Forgive us. हमें माफ कर। Be with us. हमारे साथ तू रहे। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ। Amen. आमेन। Next week we'll study about how Jesus identified Himself. और अगले हफ्ते हम पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने अपने आप को किस तरीके से उन्होंने अपने आप के बारे में दर्शाया। That's very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। And whom He related with. और उन्होंने अपना तुलना किसके साथ किया। All right. Okay. Have a good day. और आपका दिन अच्छा हो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। And I want to also remind you this. और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ। As Christmas is coming very close, क्रिसमस जो है बहुत ही अभी नजदीक आ रहा है। learn to spend time alone with God. तो इस समय आप परमेश्वर के साथ जो है आप टाइम स्पेंड करें। And you learn to know about Jesus more clearly. और यीशु मसीह के बारे में और ज्यादा आप जानिए ये सब। You get a blessing. क्योंकि ये आपके लिए आशीर्वादित रहेगा। Let's start the new year with a clear understanding. और आपका जो समझ है और ज्यादा अच्छा हो This new year, okay? इस न्यू ईयर में। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा जो मैसेज है वो पसंद आया है और आप इससे आशीर्वादित हुए हैं। अगर आप इससे आशीर्वादित हुए हैं तो प्लीज हमारे जो चैनल है सिंपली बाइबल उसे सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों को आप प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर चाहे तो फेसबुक में भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।